बस अभी बातचीत बंद। Okay. So last time, Afif, can you listen to me? Afif, hello. Good evening. Yes, sir. Good evening. Okay. So I was doing a problem, question 78, in which I told you there was a body of mass and initially, in the first point, body was at a height RE, radius of Earth above the Earth's surface. That was position number 1. Then after that, it was lifted, and it was taken to a height of 2.5 RE above the Earth's surface. They want to know what will be the change in potential energy. Okay, we know potential energy का general formula minus GMM upon R. But point 1 यानी R1 and point 2 यानी R2. Where R1 is what? RE plus H1 because distance is to be taken from center of the Earth. So RE plus H1 is RE, so RE plus RE is 2RE. R2 कौन बताएगा मुझको? मुझको R2 बताएगा G2. R2 में क्या लिखूं? RE plus H2 इतना हिंट देता हूं मैं. चलो आगे बताओ. G2 सर फिर सर आएगा RE प्लस 5/2 RE. 5/2 का है, मैंने तो लिखा ही नहीं 5/2 कहीं पे. हाँ यहाँ पे लिखा है. Okay. गिवन है ना. 2.5. Yes. That is 2.5 RE. And that is 3.5. 5/2 and 2.5. All right. Okay, sir. That's very good answer. Change in potential energy is nothing but final potential energy minus initial potential energy. That is minus G upon 3.5 RE minus of minus G upon 2 RE. GMM by RE common. तो इधर आएगा half minus 1 upon 3.5. Because minus will become plus. All right. And when you simplify this, you will get the answer. इधर क्या करेंगे? 7 हम लोग ले लेंगे LCM 3.5 और ये हो जाएगा 2. 3.5 में से 2 क्या? 1.5. 1.5 by 7. That should be the answer. और उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा? बुक का आंसर मैच कराना है तो. लेकिन ये आंसर छोड़ोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. आपके मार्क्स ना ही कटेंगे. कॉपी कर लिया आपने? Everybody will write their name. 352, 356. I do not like. कौन है 352? You must write your name. 352. Let us say Ushna. 356 Conan, like that. Yes, sir. कॉपी कर लिया आपने? प्यारे बच्चों, just copy or you are still copying?
कोनन आपने कॉपी किया? कोनन कुरैशी सर मैंने अभी ज्वाइन कर दी। अब भी ज्वाइन किया? तो कहाँ थी? अरे मुर्तजा मुझे- हैव यू कॉपीड? अगर अभी ज्वाइन किया तो Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल नॉट वेट। मुर्तजा Yes, sir. कॉपीड? Yes, sir. उष्णा कॉपी किया? Yes, sir. उष्णा उष्णा Yes, sir. ओ उष्णा, Yes, sir. ओके मिटा दूं ना? Yes. आलोक, आलोक गुप्ता, Yes, sir. okay, now we go to the next problem. I will tell you problem number, I'll tell you 79. रीड करो जीतू। हाँ सर। What will be the changes in potential energy of a body of mass m when it is placed on the surface of the earth from height capital R above the earth surface? देखो मतलब इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी, at a distance capital R above the earth surface. Of course capital R means it must be radius of the earth. ये पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 2 में क्या किया मालूम है? उसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे बिठा दिया। पोजीशन नंबर 2, उसी बॉडी को जो ऊपर थी उसको अब नीचे, पहले हम लोग नीचे से ऊपर ले गए थे, अब ऊपर से नीचे ला रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। So we want to know what will be changed in the potential energy. Now it is reverse. नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे ला रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम क्लियर? ओम मिस्त्री प्रॉब्लम बता। ओम मिस्त्री, या वेरी गुड। रोशनी प्रॉब्लम बता। रोशनी, रोशनी भी नहीं बोलती है। So we have to find the body which is coming from upward to downward. That's right. पहले it was at a distance equal to radius of the earth from the surface of the earth. दूसरी बार उसको उधर से लेके सरफेस अर्थ पे बिठा दिया। R2 क्या होगा? R plus H2. That is R plus H2 में कितना लिखूं भाई? Anybody who can tell me? H2 में कितना लिखूं? Anyone, बिंदास बोलो ओपनली। प्रॉब्लम आपके सामने। अस्का, ओ अस्का, विधि, Is it the radius of the earth? that's very bad answer. H2 is 0. अरे यार, बॉडी पहले यहाँ पे दिया 0.1. So what is the total distance from the center of the earth? R plus H, which is R. Yes, sir. So R I plus meant R to R. sir, the two, sir. I meant the radius of the earth plus 0, sir. अरे तो H2 0 बोलना sir. Put H2 as 0. I am asking what should I write for H2? You said equal to radius of the earth. You meant to say this R, Afif? Yes, sir. Then you are right. Absolutely right. Very good. Okay. What is PE1? Minus G upon R1. That is minus G upon 2R. What is potential energy 2? Minus G upon R2. Minus G upon capital R. What is the change in potential energy? PE2 minus PE1, and that is equal to minus G upon 2R, okay, upon R, and minus of minus G upon 2R. All right, and that is equal to minus G upon capital R plus G upon 2 capital R. So that is G upon capital R common, and you'll get minus 1 plus half, or that is equal to minus G upon 2R. This is the final answer.
एक बार रिपीट मारूं, रूलर मारूं एक बार बच्चों? Yes, Yes, sir. ओके, आई डोंट वरी, आई विल कॉपी कर लो एक बार, मैं रूलर मार के आई हेल्प यू आउट टोटली। और कुछ भी क्वेश्चन है बिंदास पूछो, बिंदास क्वेश्चन पूछो, बेहिचक। कॉपी कर लिया हो तो मैं रिपीट करूंगा। कोनन कुरैशी, हैव यू कॉपीड? नहीं सर, कर रही हूँ कॉपी। ओके, व्हाट अबाउट आलोक गुप्ता? Doing, sir. Okay. सर डन। Then okay, देखो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या था वो समझो। एक थी बॉडी, इनिशियली बॉडी वाज एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ऑलराइट, वो फर्स्ट पोजीशन, फिर उसको धीमे 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 लेके आए और सरफेस ऑफ अर्थ में रख दिया। वो लोग बोलते हैं व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नो, तो आई कैन एक्चुअली डेटा में लिख सकता हूँ H1 इज R and H2 is 0. Correct. And we want to find change in potentiality. So small r1 will be R plus H1, but H1 is equal to R. So R plus R, that is 2R. Small r2, R plus H2, H2 is 0. So R plus 0 equal to capital. What is first potential energy? Minus GMM upon R1. R1 is 2R. So minus GMM upon 2 capital R. Potential energy to minus GMM by R2. Minus GMM by R2 is what? Capital. कभी भी चेंज होता है ना वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम बाय बड़ो आर, माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज माइनस जीएमएम बाय छोटो आर, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन जीएमएम बाय आर कॉमन लिया तो -1 प्लस हाफ, दैट इज -हाफ। तो ये रहा आंसर आपके सामने। नहीं आया समझ में? क्या आया कि एक बार और रिपीट कर दूं? माज शेख, अस्का, उष्णा, हुसैन, वैष्णवी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी? वैष्णवी, यस सर। ओके। विधि है कि नहीं? विधि भट्ट, आर यू देयर? Yes, I'm there. Yes, Vidhi is there. Yeah. Oh, good. Understood, Vidhi? It's understood. ओके, तो अब मैं अगले टॉपिक भी हो गया, अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ता हूं, और वो है उस प्रॉब्लम पे जाने के पहले क्वेश्चन पूछता हूं, कौन है जो मुझे बतावेगा? देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था एक फॉर्मूला, इधर दिस मल्टीप्लाइड बाय, किसी को याद है क्या था वो? इधर क्या था, इधर क्या था? एनीबॉडी नोस? Anyone who can tell me? मैंने जब बाइंडिंग एनर्जी के 2 डेरिवेशन किए थे ना, तब मैंने फॉर्मूला दिया था आपको। इधर था, चलो, मास ऑफ सैटेलाइट। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ बोलो बोलो, यू आर राइट। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential. लवली आंसर, लवली आंसर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब बाइंडिंग एनर्जी एट रेस्ट था तो एट द सरफेस ऑफ द, जब रिवॉल्विंग था तो एट पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी क्या यूनिट होगी? कुछ की यूनिट नहीं होगी, और होगी तो क्या होगी? इसका फॉर्मूला पहले बताओ, इसका फॉर्मूला क्या था? एनीबॉडी? माइनस, और इधर का छोटा एम, इधर क्या था? Who can tell me? Who can tell me that? Fast. अरे पेपर पलट सकते हो, देख सकते हो, that you are allowed to do. यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? कोई नहीं। So minus capital G capital M upon R, small r. Lovely answer, lovely answer. Too good answer. Alok Gupta, I am so impressed by you. अच्छा, अब मुझे बताओ,
व्हाट विल बी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? खाली इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से देख के पता चलता है। अगर यूनिट का थोड़ा भी नॉलेज है कैसे निकलने का यूनिट, यू कैन टेल मी सर यूनिट विल बी दिस। कौन है जो बतावेगा? कौन है जो बतावेगा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? आई रियली वांट योर आंसर्स। फिर मजा आता है पढ़ाने को, बहुत मजा आता है। अभी देखो इसने इतना अच्छा आंसर दिया आलोक गुप्ता ने कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। आलोक गुप्ता भी अगर हार्ड वर्क करे तो ही कैन सक्सीड लाइक एनीथिंग। बोलो ना यार। विधि, विधि, अस्का, उष्णा, ओम, अफीफ, हाँ अरे यार कितना इजी है। हाँ क्या क्या? So is it the unit of potential energy? नो, इट इज जूल। इसका तो यूनिट चाहिए हमको, केजी। तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा जूल्स पर केजी। ये जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या आएगा? इधर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। यूनिट ऑफ दिस विल बी यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ मास, दैट इज जूल पर केजी। नहीं आया समझ में? ओ बच्चे लोग समझे कि नहीं? जूल पर केजी, इसकी यूनिट जूल और इसकी केजी, तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी। अरे समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझा. कोई बोलता ही नहीं है यार। हाँ तो बोलो कि हाँ सर समझ गया। क्या? समझ गया। ओके अब इसके ऊपर मैं करना चाहूंगा क्वेश्चन 80 विल बी रेड बाय जीतू। So what is the gravitational potential due to the Earth at a point which is at a height of 2 RE about the surface of the Earth? The mass of the Earth is 6 into 10 raised to 24 kg. Radius of the Earth is 6,400 kilometers. 6 into 10 raised to 24 kg. Or the radius of the Earth is 6,400 kilometers, and the gravitation is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg minus cube square. Negative. नहीं नेगेटिव नहीं, 6.67 माइनस नहीं sir, kg. gravitational potential. What we want is gravitational potential. And now it is not on the surface of Earth. Gravitational potential at a height. So what is the formula I use? इसको GP कर देता हूँ, GP. Gravitational potential का formula क्या होगा? It will be minus gm upon छोटा सा r. What is छोटा सा r? छोटा सा r is r plus h. That is minus gm upon r plus what is h? H is 2r. So that is minus gm upon 3r is the answer. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. Into m upon 3 into r is 6,400. What is the mistake? अब फटक से मिस्टेक बोलना चाहिए. सर ये मिस्टेक कर रहे हो आप. Who can tell me? What is the mistake? Sir, So this kilometer into to meter. Yeah, that's right. इसको लिखो 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. ये 6.4 into इधर minus 6 आ जाएगा. And when you simplify, you will get the answer. इसका आंसर आता है minus 2.08 into 10 raised to 7. यूनिट क्या आएगी इसकी? Will it have any unit?
मेरे को तो यूनिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की लगती है, होना ही नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? joules per kilogram. अभी तो बोलना चाहिए सर, क्या मस्ती कर रहे हो आप, कितनी जूल पर किलोग्राम सर, अभी अभी तो बताया आपने, आप हम लोग की मस्ती करते हो सर। रूलर मारने की जरूरत है कि देयर इज नो नीड टू पुट रूलर? प्यारे बच्चों, जीतू, कोनन, माज, मुर्तजा, विधि, नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। लवली। अब है ना, ऐसा लिखो, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ Sir, I'm अर्थ। copying. ओके, कितना टाइम लग रहा है कॉपी में यार? Yes, sir, finished. Sir, finished. सर फिनिश। सर हो गया। Done, sir, done. यस यस, गुड। कितना टाइम सर, लगता है बता छोटे से कॉपी करने में? ओके, सर अब है ना बेटा, ऐसा लिखो, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें मैं इंटेलिजेंट ट्रेन देखूंगा, कौन मुझे बताएगा। एंड यू नो, प्लीज बोलो, रॉन्ग होएगा तो भी मेरे को सर रिपीट चलेगा। वंस अगेन। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ shape of earth on acceleration due to gravity. लिखा आपने? अब ना आपको एक चीज पता है क्या? यह है परफेक्ट स्फीयर, but earth actually has become of this shape. This is perfect sphere और ये है, इसको बोलते हैं ellipsoid. This is what is poles, this is what is equator, this is no, but this is right. This is poles and this is equator. Actually, you know, ये शेप हम लोग मानते हैं, but actually ये शेप के अर्थ नहीं है, अर्थ की ये शेप है. Due to rotation, you know, there is a force called centrifugal force.
उसने कर करके अर्थ को है ना ऐसा इलिप्सॉइड बना दिया है, ऐसे गोले के बदले से दबा हुआ इलिप्स जैसा अर्थ एक्चुअली स्फीयर। और हजारों करोड़ों साल के बाद में अर्थ विल गो ऑन ऐसे बढ़ते 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 प्लेट बन जाएगी, क्योंकि इट इज गोइंग टू अंदर का लावा, उसके डिटेल हम लोग 12 में डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये मैंने राइट है, मतलब दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट शेप, दिस इज नॉट द करेक्ट शेप। टेल मी GM कैन बी रिटन एज व्हाट इज GM कैन बी रिटन एज? पहला सब्स्टिट्यूशन क्या? GM कैन बी रिटन एज व्हाट इनटू व्हाट? अस्का तुम बताओ, अस्का कभी नहीं बोलती हो तुम। GM इक्वल टू अस्का, ओ अस्का बोलती नहीं है। So small g capital R. That's right. Small g capital R square. And therefore, what is small g? GM upon R square. You agree with this? This is the radius at pole. And this is the radius at equator. Therefore, can we say G is inversely proportional to R square? G is inversely proportional to R square. Tell me, all of you agree with this? Yes. Bolo, bolo. हाँ sir. Okay. Tell me, can I say since radius at pole is less than radius at equator? देखो radius at pole छोटा है ना और equator बड़ा है. Therefore, what should I write about G? ये छोटा है, देखो RP is less than RE and GRR R square is inversely proportional. Therefore, G at pole and G at equator क्या होगा बताओ? Anybody? ये आपने स्कूल डेज में पढ़ा है इनवर्सली डायरेक्टली का? GP is greater than G. That's right. क्योंकि इनवर्सली है ना, मतलब acceleration due to gravity at pole is more than acceleration due to gravity at the equator due to shape of the earth. Due to shape of the earth. ये एक्चुअली डायग्राम बनाओगे तो समझ जाओगे कि अर्थ को हम लोग स्फीयर मानते हैं, लेकिन वो स्फीयर नहीं है। एक्चुअली ड्यू टू रोटेशनल मोशन इट हैज बिकम इलिप्सॉइडल इन शेप। यू वांट टू राइट दिस स्टेटमेंट? ये लिखना चाहते हो बच्चों? इम्पोर्टेंट है तो लिख देते हैं। नहीं लिख डालो, चलो लिख, रिकॉर्डिंग से नहीं होएगा, बाद में रिकॉर्डिंग कोई देखता नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट भी देखता नहीं है, तो रिकॉर्डिंग क्या देखेगा। लिखो, ऐसा लिखो, in reality earth is not a perfect sphere. ऐसा लिखो, in reality earth is not a perfect sphere. और बुक खरीद ली सभी ने? 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खरीद ली है? ओह सर 11th का पोर्शन नहीं खत्म हो रहा है। अरे पहले तुम लोगों को बोला करो ना, अभी मिस ने चालू किया है ना 12th। Sir, we have PDF. You have PDF, sir, downloaded. अच्छा PDF है, लेकिन खरीद लो हार्ड कॉपी। मेरे को तो पता नहीं PDF पे तुम लोग को आदत है अच्छी, PDF की तो अच्छा है। आई लाइक द हार्ड कॉपी। और ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई मे स्टार्ट विथ 12th स्टैंडर्ड नेक्स्ट टाइम। आज ये खत्म हो गया तो आज हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन एक दो प्रॉब्लम बाकी रह सकते हैं। एनीवे चलो, हाँ क्या लिखा आपने इसमें? In reality, Earth is not a perfect sphere. हाँ, due to rotational motion of Earth, it has become ellipsoidal. आगे ellipsoidal लिख देना, ellipsoidal in shape. Ellipsoidal in shape, as shown in the figure. Due to As motion shown of in the Earth, due to rotational motion of the Earth, it has become ellipsoidal in shape. Ellipsoidal in shape, as shown in the figure. As shown in the figure, such that the radius at pole RP is less than, such that a radius at poles capital R छोटा p is less than a radius at equator capital R but suffix e, capital E, suffix capital E. So can you please repeat it again? अरे यार मैंने अपने मन से बनाया, किसने लिखा है?
हाँ सर, मैं बोलूँ? हाँ बोलो ना प्लीज. बोल. In reality, Earth is not a in reality, Earth is not a perfect sphere. Due to rotation of motion of Earth, it has become ellipsoid as shown in the figure, such as RP is greater than RE. हाँ, RP Sorry, less than RE. हाँ सर, RP is less than RE. तो वो लेस देन ग्रेटर देन नहीं समझ में आता है नहीं जीतू. सर, नहीं सर, अरे गलती गड़बड़ हो से जाएगा बोल ऐसे तुम बोलोगे तो यार. नहीं से गलती से ये ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखा है ना, ऐसा वाला हाँ ये सर, बना हाँ है ना. सर, ऐसे लिखा. बाप रे. डरा रहे हो तुम तो. ओके, इसके बाद में लिखो डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड. इसके बाद में लिखो डेफिनेशन में स्पेलिंग लिख देता हूं. डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड. ये डायग्राम भी बना लो. लैम्बडा. डायग्राम बनाया सभी ने. डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाया क्या? हाँ सर. हाँ सर. ओके. अब है ना लैटिट्यूड क्या होता है पहले समझ लो आप क्या होता है. यू नो, सपोज ये अर्थ है. अर्थ से भी एक पॉइंट लिया मैंने, कहीं पे भी लिया पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आई जॉइन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट पॉइंट. सेंटर ऑफ द अर्थ, स्फीयर का सेंटर वाला पॉइंट उधर से ज्वाइन करता है. तो व्हाटएवर एंगल दिस लाइन ज्वाइनिंग center of the earth to a point on the surface of the earth makes with the equatorial plane, makes with the equatorial plane, that angle is called as latitude, lambda. At equator, can you tell me at equator what will be lambda का value? lambda का value क्या होगा equator पे, और at poles क्या होगा lambda का value? Anybody? So is it 0 and 90? 0 degrees and 90 degrees. Lovely answer. Afif and Alok, these two are the best students. At equator, lambda is 0 and at poles, lambda equal to 90. मुझे बोलने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, मैंने बताया हर बार बोलता हूँ, बोलते जाओ, बिंदास बोलते जाओ. Without worrying what sir will think, what others will think. सोचने दो जिसको जो सोचना है. ओके, अभी लैटिट्यूड की डेफिनेशन लिख डालो जरा. कैसे लिखो? The latitude at a point, latitude at a point on the surface of the earth, on the surface of the earth is defined as the angle, is defined as the angle which the line joining that point, which the line joining that point to the center of the earth, to the center of the earth makes with equatorial plane. It is denoted by lambda. At equator, lambda equal to 0 degrees. At poles, lambda equal to 90 degrees. Is that clear? लिखा?
लिखा सभी ने? Yes, sir. ओके, इसके बाद में लिखो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सीधा फॉर्मूला लिख दो. G dash equal to G minus R omega square cos square lambda. इसका derivation we'll do later on, where R is radius of Earth, omega is angular velocity of Earth. ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस नहीं किया ना कभी भी 2 पाई बाई टी. ऐसा फॉर्मूला डिस्कस किया है क्या मैंने कि नहीं किया है? प्यारे बच्चों, ये पहली बार दिख रहे हो ना? ये फर्स्ट टाइम? ये पहली बार देख रहे हो कि किया है मैंने कभी? शायद से किया, क्या? शायद से. 2 pi upon 86,400 and that is equal to 7.268 into 10 raised to minus 5. ये डायरेक्टली लर्न करके रखो. वैसे एंड लैम्बडा तो इज लैटिट्यूड, उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं. ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न बाय हार्ट. जिस लाल में कर देता हूं. फॉर्मूला इज टू बी लर्न बाय हार्ट. Sir, is that radian per second? हाँ, रेडियन पर सेकंड. क्या दिख रहा है? What you are Okay, seeing? it was not clear. Okay, rate per second. RAD upon S. Now you can see properly. Yes, sir. Okay. एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग. क्वेश्चन 65. क्वेश्चन नंबर 6565. उसके बाद में नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द चैप्टर. सो पीडीएफ अपने सामने दूसरे फोन में रखना या हार्ड कॉपी लोगे तो अच्छा है. And keep preparing whatever is being going on. Please prepare. Less than 1 minute we are having, not much time we are having. So जरा मैं फॉर्मूला पूछता हूँ. ये कॉपी कर लिया सभी ने? KPTB, चलो जल्दी बताओ. KPTB. This is revolving. इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? मुर्तजा, ये फॉर्मूला बता. रिवॉल्विंग सैटेलाइट का टोटल